Why do colleges wanted you to learn about simple interest compound interest? Sheet नहीं चाहिए. Any idea? Anything? To check. Okay, to check the finances, because many of you will be going for MBA in finance. And even if your boss is saying, I want a CAGR. What is CAGR, by the way? Compound annual growth rate. I want a CAGR of 15%. What does that mean? क्या मतलब होता है CAGR of 15%? सुना होगा ग्रेजुएशन तक तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट दिस. CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है, मान लो 2010 से स्टार्ट करते हैं and there was a business of $100, and 2011 there's a growth of 10% CAGR, compound annual growth rate का मतलब this becomes 110. तो 2012 में this becomes 120 or 10% of 110. 10% of 110, that is compound annual growth rate. क्या कहते हैं उसे? Compound annual growth rate. Every year the business grows by 10% means whatever was the figure in 2011, it will grow by 10%. So it becomes 121. Do you agree with it? So can you tell me what will be the figure in 2013? There's this growth of 10%. How much is 10% of 121? 12.1. Should I say it is 133.1? Am I right? Again, I'll say 2014, there's a growth of 10% CAGR. So I will take again 133.1. I'll take 13.31. Should I write it like this? It is 146.41. ठीक है? कितने साल हो गए 2010 से लेके 2014 तक? 1, 2, 3, 4. 4 intervals. Years are 5, but intervals are 4. Agar 4 years mein, what is the growth that you find here? How much is the growth? 100 becomes 146.41. Should I say there's a growth of 46.41 of out of 100, which comes out to be 46.41. कितना percent growth हो गया? 46.41. इसकी जगह CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की जगह अगर मैं SAGR कहता, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, तो क्या होता? तो पहले $100 होता, तो नेक्स्ट ईयर में क्या आता? 110. सेकेंड ईयर का सेम रहता. देन इट इज 120. सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है, एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है वट एवर इज द इनिशियल वैल्यू, 10% ऑफ दैट इज गोइंग टू बी ग्रो. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? इसमें कितना होता? $130. व्हाट अबाउट दिस वन? कितना आ जाएगा? $140. डू यू एग्री विद दिस दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ कितना परसेंट? 40%. तो सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है दैट एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग बाय द सेम वैल्यू. While in terms of CAGR का मतलब होता है with respect to the last year, it grows by same percentage. That is the basic difference between CAGR and SAGR. Most of the businesses, if you are in habit of reading Economics Times or maybe Times of India or the Hindu or Indian Express, and if you read the business news, you'll be finding that the companies are talking about annual growth rate CAGR of 12%. So one of the reason is you should be aware what is CAGR, what is SAGR. That is the reason why, the IIMs want you to be aware about it. Is it fine? Clear? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो पहला स्टार्ट करते हैं जी हम. एक सेकंड लीजिएगा. We'll start with the simple interest. Okay. Why do interest is charged? Why do we charge interest? Is taking loan a good idea or bad idea? Good idea. Good idea. Depends. Okay. Okay. Say that I want to buy a house. The house is having a worth of 1 CR. गरीबों का घर है, 1 करोड़ रुपए में ही आता है आजकल. तो 1 करोड़ का एक हाउस है. I'm saying that there's an inflation of 8%. Why my inflation is 8%? Reason is the things that I consume that is growing at the rate of 8%. तो द सरकारी आंकड़े जो आप देखते हैं वो उसके ऊपर बेस्ड होता है कि गेहूं का दाम क्या बढ़ा, चावल का दाम क्या बढ़ा, बट देयर इज हार्डली एनी चेंजेस इन दोस प्राइसेस.
The other commodities have been, the vegetables have been increased at a higher rate. The non-vegetarian has been increased at a higher pace, or the other exotic fruits that you are going to buy, that is increased at the higher pace. So I consider it as a 8% of inflation. So today I booked a house for 1 CR, which is 8% is the inflation that I expect. And I'm taking the loan at the rate of 9%. कितना? 9%. ठीक है? मैं समझा रहा हूँ आपको, चमत्कार लगेगा कुछ दिनों बाद. Why MBAs are rich? You will find the reason today. Now what happened is I go to the housing loan, they give me 9% rate of interest. सब कुछ ठीक है, सिबिल स्कोर वगैरह. After 1 year, I find that I'm going to pay 9% over it. ठीक है? तो 9% कितना हो गया? 9 lakh rupees is the interest that I paid. आपने कहा सर 8% का इन्फ्लेशन है, घर खरीद रहा हूं, क्या पता घर में 30% का इन्फ्लेशन, तो 1 साल बाद मैं इस घर को बेचने जाऊंगा तो 1.3 CR का होगा. क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, 1.3 CR में घर बिक जाएगा अगर 30% मार्केट में रेट पड़ा. तो ये बताओ मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ. अभी एक और कहानी है, डॉलर के मुकाबले रुपए लुढ़क गया. ठीक है, तो डॉलर में तो ये सही है, बट व्हेन आई गो एंड कन्वर्टेड इन द रुपीज, यू विल फाइंडिंग दैट दिस इज मच चीपर नाउ. ठीक है, मतलब यू आर गोइंग टू सेव सम मोर मनी इन दैट. रीजन इज इट इज इन डॉलर्स. द मोमेंट यू आर गोइंग टू सेल इट इन रुपीज, आई विल से कि भैया रुपए तो पहले ही लुढ़क गया, तो आपको जो रुपए मिलेंगे वो ज्यादा रुपए मिलेंगे. तो पहले मान लो 70 रुपए का एक डॉलर था, अभी इट इज 80 रुपीज का डॉलर. तो अर्लियर दिस वाज मल्टीप्लाइड विद 70, मैं कहूंगा 70 CR का था. अभी मैं आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 80, दिस इज 104 CR. आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज. Do you find the difference here? So most of the people, you know, when they get into IIMs, they plan to go for MBA in finance. Reason is most of them are planning their retirement at the age of 35. पहले तो 40-45 बोल रहे थे, अभी तो they have further reduced it. They say you work for 15 years, after that you become a consultant. क्या मेरी बात समझ में आई? So here inflation plays a big role. Here devaluation of a rupee also play a bigger role. So you'll be finding at the end of this, it is not going to be a loss for me. It is going to be a profitable venture for me. Do you understand it? ठीक है, और स्टॉक एंड शेयर है, जब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो और आगे चलेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है देयर इज अ वन अमाउंट व्हिच इज नोन एज अ प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन. दिस इज द मनी दैट यू टेक एज अ लोन और यू गिव एज अ लोन. So for example, if I take a loan of 1 crore rupees ka, तो principal amount for me is 1 CR. For bank also it is 1 CR. मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए इस पे ले लेते हैं 1 लाख रुपए पे लोन लेना मुझे, पर्सनल लोन. रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा वी विल चार्ज 10%. ठीक है, वैसे अगर अनसिक्योर्ड लोन करोगे तो और ज्यादा होता है, 15, 16, 18% तक जाता है. ठीक है, लेकिन मान लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम. 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच विल बी द मनी आफ्टर 1 year. कितना पैसा हो जाएगा ये? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ? द सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी. वैसे मैं फॉर्मूले पढ़ाने में ज्यादा यकीन नहीं रखता, बट मैं कहूंगा 1 लाख रुपए पे आपको 10% देना पड़ेगा. परसेंट का मतलब होता है पर 100. दैट इज द रीजन वाई दिस परसेंटेज इज पर 100. For 1 year, it is coming out to be kitna? 10,000 is the money that you are going to pay. Do you agree with it? So what is the simple interest at the end of first year? 10,000. What will be the amount? Amount क्या होता है? Amount होता है principal amount plus the interest. तो मुझे जो amount देना है वो कितना देना है? Should I be paying 1 lakh rupees or 1,10,000? 1,10,000. आपने कहा 2 years का हो गया, 2 साल का हो. तो सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड ओनली ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट. सिर्फ मूलधन के ऊपर जो ब्याज काउंट किया जाए, दैट इज नोन एज अ सिंपल इंटरेस्ट. सो शुड आई से इन 2 years यू आर अगेन गोइंग टू गेट 10,000 मोर. दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. तो व्हाट इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट मैंने कुछ नहीं पे किया. आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज. बैंक ने कहा भैया सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% के हिसाब से आपको दे रहे हैं. मैं कहा 2 साल बाद आऊंगा, पैसे दूंगा. तो 2 साल के बाद हाउ मच मनी आई विल बी गोइंग टू पे दैट? 1,20,000.
there is no interest charge over the interest. It is only over the principal amount we are charging the interest. दोबारा बता रहा हूं, तुम लेट आए हो इसलिए बता रहा हूं. सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज चार्ज ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली. सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. ठीक है, क्लियर ऑन दिस? ओके, लेट मी फॉर्म अ टेबल फॉर यू. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, this is compound interest. The principal is say 1 lakh rupees. Rate of interest is say 20%. First year में आप कितना simple interest earn करोगे? Should I say 1 लाख का 20%? Can I say it comes out to be 20,000? What about compound interest? Again, because so far no interest has been accumulated, you will also say it comes out to be 20,000. तो पहले साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? सेम 20,000. What about second year? 2 year में कितना मिलेगा? I'll get 20,000 more, same amount. The total money that I'm going to get in 2 years, मतलब first year and second year का combine करके कितना मिलेगा? That comes out to be 40,000. Do you agree with this? I don't think there is any doubt. Here also I will be getting 20,000 rupees over the principal amount. Principal amount पे मुझे 20,000 मिला. पिछले साल का 20,000 और आ गया. Along with that, I will earn 20% over the last year interest. What is that? 4,000. Should I say the total money that I'm getting is kitna? Kitna? 44,000. How much money will I get? I'll get 44,000. How much is the difference between these two? 4,000. ये 4,000 आया कैसे? The difference between compound interest and simple interest for 2 years is nothing but it is interest over interest. Interest over interest of first year. I'm repeating it again. Listen to this very carefully. The simple interest and compound interest के बीच में difference 0 होता अगर सिर्फ principal amount पे interest calculate होता. But compound interest में you are not only earning over the principal amount, you are also earning over interest. So the difference between the compound interest and simple interest for 2 years is the interest over interest of first year. पहले साल के ऊपर जो आपने interest earn किया है, आपने 20% interest earn किया, उसका भी 20% निकालेंगे. तो 20% मतलब 20 upon 100 of 20%. I will say this comes out to be kitna? 4%. Do you agree? So there is a 4% of the money that you will get more. 1 lakh का 4% कितना होता है? 4,000. Should I say that is coming out to be 4,000? The difference between them is 4,000, sir. Is it fine? It is the interest over interest that I'm getting extra in compound interest. Rest of the things are same. Clear? Can you help me to find out what about the interest for the third year? कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का? सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 20,000. अरे भाई सेम ही आता ना सर. तो टोटल कितना हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट? 60,000. एवरीवन एग्री विद दिस? यस. व्हाट अबाउट दिस वन? यू विल गेट 20,000 ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 44,000 आप अभी तक अर्न कर चुके हैं. कुछ और भी होगा? Should I say I will earn 20% over this 44,000, which is 8,800. So this is 64, 72,800 is the interest that we earn. Is it fine? Clear? What I did is 44,000 अभी आ चुका था, 20,000 और आएगा प्रिंसिपल पे, 64,000 हो चुका है. Plus over this interest I'm going to earn interest. How much? 20% of that is 8,800, which comes out to be 72,800. Is it fine? Clear so far? Please write it down. Ask me if there is any query. Arshi, Garg, Siddharth, Vivek, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay. ठीक है. आगे चलें? ठीक है. Okay. Now there is a one thing which is known as a successive percentage change. आप में से काफी सारे लोगों ने पढ़ा हुआ. There are few new admissions, so for them
कभी भी कोई वैल्यू अगर a% इंक्रीज होगा फिर b% इंक्रीज होगा तो हम कहते हैं दैट इज इंक्रीज बाय a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। मान लीजिए आपने कहा 20% इंटरेस्ट पहले साल मिला, 20% इंटरेस्ट मुझे सेकेंड ईयर में मिला, तो इफेक्टिव कितना मिला? ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है। कौन सा वाला केस है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं कहूंगा 20% फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर, 20 का भी 20% और मिलेगा। I'll cancel it. This gives me 44% ग्रोथ। क्या आपको यहां पर 44% ग्रोथ लग रहा है? 1 लाख का 44% कितना होता है? 44,000। देख लीजिए आ रहा है। Is it fine? So what I'm getting is I'm getting 20% in first year, 20% in second year, but along with that I will earn 20% over 20% as well. Interest के ऊपर भी interest लगेगा, which comes out to be 44%. आपने कहा what about the compound interest for 3 years? मैं कहूंगा 2 साल में आया 44% और उसके बाद थर्ड ईयर में अगेन इट इज 20%, बट इट इज अ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जो 20% का इंटरेस्ट है वो 44% पे भी लगेगा। तो आई विल से दिस इज 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन 100, दैट कम्स आउट टू बी 64 प्लस 8.8। कितना हो गया? 72.8। क्या नजर आ रहा है आपको? दिस कम्स आउट टू बी 72.8% ग्रोथ। Is it matching with this one? Yes, no? Are they matching? Yes, 72.8% is 72,800 of 1 lakh. ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। It is nothing but it is a successive percentage change. इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाया हमने 20 प्लस 20। ऐसा सर कोई एग्जांपल भी हो पहले 10%। हाँ, हर जगह बस रिडक्शन भी कैसे माइनस साइन लगा देना। Everything will be same, only it will replace with the negative sign. Depreciation कहते हैं, मान लो मैंने कोई कार खरीदी, हर साल वो 10% depreciate कर दी, तो I want to find out what will be the value after 2 years, ठीक है? तो उसमें depreciation आएगा minus 10%, 19% का depreciation होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। मान लो आई टुक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। बैंक ने कहा कि सिबिल बहुत खराब है आपका, लोन नहीं देंगे, हाथ पैर जोड़े, का 20% rate of interest is what we will charge. When you multiply a number by 1, what happens? Does number increase, decrease, or remain same? It remains same. If I want to increase a number, should I multiply it by more than 1, less than 1, or 1? More than 1. I'm saying when you multiply it by 1, it does not change, but I want to grow it by 20%. कितना grow करना चाहता हूँ? 20%. तो पहले साल 20% ग्रो करा, फिर दोबारा 20% ग्रो करूंगा, तो 2 साल बाद मुझे कितना मिलेगा? तो आपको हो गया 1 लाख इंटू इट इज 1 प्लस 20 अपॉन 100 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। आप सबने ये फॉर्मूला देखा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ एन टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के कहानी है, कितने साल में। P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। P इज व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या मेरी बात समझ में आए? कुछ लोग बोलते हैं फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो सेम चीज है। So if I want to find out how much will be the value after 2 years, I'll say 1.2 into 1.2 into 2 lakh. 2 lakh का 1.2 is 2,40,000 into 1.2 is कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144, उसका डबल इज 288। सही है? ठीक है। 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 28। 2,88,000 is the value that we are going to get. Is it fine? If सॉरी 1 लाख होगा तो 1 लाख का ये हो जाएगा 1,20,000, फिर ये करोगे तो 1,44,000 हो जाएगा। 2 लाख ले लिया मैंने। इफ इट इज 2 लाख देन इट इज सेम थिंग,
आई बिलीव इट इज क्लियर. 2 लाख रुपीज लिया था इसलिए उसका डबल कर लिया था. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1,44,000. हाउ मच इज इट ग्रोन? कितना परसेंट? 44,000 ग्रो किया 1 लाख में से. कितना परसेंट ग्रो हो गया? 44%. दैट गिव्स यू द सेम वैल्यू. तो यू यूज ईदर ऑफ दीज मेथड. सो आई बीन ऑल्सो आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन. सर अगर डेप्रिसिएशन होगा तब क्या करेंगे? सो मान लीजिए अंबुज बॉट अ कार फॉर ₹10 लाख. 10 लाख की एक गाड़ी खरीद के लिया है भाई. देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 20%. तो आफ्टर 1 ईयर द कार विल बी 1 मिलियन इंटू 1 करेंगे -20% है. आप समझ में आ रहा है माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग. तो 1 माइनस 0.2 इज कितना? 0.8. क्या मैं कहूं 10 लाख की गाड़ी 1 साल के बाद कितने की हो जाएगी? 80,000 मत बोल भाई, बर्बाद हो जाएगा. 8 लाख की. ठीक है, 8 लाख हो जाएगा. दोबारा डेप्रिशिएट करा तो शुड आई से आई विल स्क्वायर इट. तो 8 का स्क्वायर 64 होता है. तो कितना हो गया? 6,40,000 is the depreciation price after 2 years. Is it fine? So in case of increasing you will plus, in case of decreasing you will minus. Very nice. Is it clear? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है कुछ? किसी को भी कोई डाउट? आपको समझ में आ रहा है सर? Here is it clear? So you can apply the same method here as okay. रुको जरा. ये करो. Try to answer this question. Long cut teaching. Long cut. Short cut. कुछ अमाउंट पे मैंने 8% दिया, कुछ पे मैंने 12% दिया. बचपन में मैम ने पढ़ाया था 12 को बेटा ऐसा भी लिख लेते हैं. 8% प्लस 8% अगर दोनों होगा तो 8% कॉमन आएगा. मतलब मान लेते हैं आपके पास 8,000 रुपये, मेरे पास भी 8,000 रुपये, तो एवरेज वी गॉट 8,000 रुपीज. एम आई राइट? तो आई विल से दिस 4% इज कमिंग आउट टू बी मोर. पता नहीं कितना अमाउंट है, एन अमाउंट पे 4% आपको और मिला. ठीक है, विच इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल, क्योंकि 10,000 के रिस्पेक्ट में है. या ऐसे कर लो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना. तो 8%, ये 8% किसका है? 10,000 का, क्योंकि इस पे 8% है और इस पे भी 8% है, तो टोटल मिला के पैसा ही 10,000. तो 8% तो सब पे मिलेगा. व्हाट इज 8% ऑफ 10,000? 800. 4 ईयर्स में 3,200. तो यहां से कितना कमाऊंगा? एन मनी जो मैंने इन्वेस्ट किया है 4% के हिसाब से 4 ईयर्स में, एन का 16% ऑफ द मनी विल कम आउट टू बी कितना? टोटल पैसा कितना है देखो, 3,800. 32 तो मैंने कमा लिया है, बाकी कितना और कमाना है? ठीक है, 16% मतलब 16/100. आई कैंसिल इट. 8 से कैंसिल करूंगा. 8 7 56, 8 5 40, और ये 2 है, इससे कैंसिल करा, ये 50 आ गया. n इज इक्वल टू 75 इंटू 50. कितना होता है जी? 0 5 5 25, 3750. तो 3750 ऐसा पैसा था जो मैंने 12% पे दिया, इन्वेस्ट किया. लेकिन आपसे पूछ रहा है मायरा को कितना दिया. तो भैया 10,000 रुपए में से जो बचा हुआ पैसा होगा 3750, दैट इज द मनी दैट आई हैव गिवन टू किसको? मायरा. इज इट फाइन? नॉट येट. ठीक है, एक और तरीका है, एलिगेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं. एक पे 8%, एक पे 12% है. ठीक है, 3,800 4 साल में मिल रहा है. सॉरी, 1 साल में कितना मिलेगा? 950. अरे यार, 3,800 4 साल के बाद आया था ना. सिंपल इंटरेस्ट है यार, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, हर साल बराबर पैसा मिलता है. तो 1 साल में कितना मिला हुआ? 950. 950 10,000 का कितना परसेंट होता है? फटाफट बताओ. बहुत बढ़िया, 9.5%. हाउ मच इज चेंज? हाउ मच इज चेंज? द रेशियो ऑफ दिस इज 5:3. इस रेशियो में पैसा बटेगा. तो 10,000 को 5 and 3 8 पार्ट्स में तोड़ोगे तो 1 part will be equal to 1250.
and 3 part will be equal to 3750 and 5 part will be 6250. तो 6250 तो मायरा को दिया है, ये देखो मैंने भी निकाला था, और मायरा का कहीं लिखा था हमने, ये रहा, और 3750 इन्वेस्ट किया था। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको पढ़ाने में मुझे टाइम है, मैं बताना चाहता हूं कि देयर आर मेनी मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन गेट द आंसर। आपने कहा सर ये तो बेकार है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से समझाओ। मायरा को मुझे नहीं पता कितना पैसा दिया, मैंने कहा X रुपीस दिया, और इन्वेस्ट कितना करा, Y रुपीस करा। कुछ लोग बोल रहे होंगे 10,000 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने कहा कौन यार बार बार माइनस एक्स लिखने में झंझट होती है, हमें यह पता है x प्लस वाई कितना है, बोलिए कितना है, 10,000। क्या मेरी बात समझ में? आपने x लगाया 8%, 4 साल में इतना होगा, y में लगाया 12%, 4 साल में होगा इतना, ठीक है। x इंटू 32% प्लस y इंटू 48%, ठीक है, इज इक्वल टू कितना पैसा? हाँ ना, परसेंटेज का मतलब होता पर 100, अगर शायद आपने सुना हो तो 32x प्लस 48y is equal to 3840. 100 goes there and multiply. You also know what is x plus y? Come on, 10,000. अरे पूरा पैसा तो 10,000 था, आपने कहा सर एक वैल्यू निकालना है, दोनों को 32 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। Is that fine? This is 3,80,000, this is 3,20,000. सेपरेट करोगे तो कितना मिलेगा? 16y is equal to कितना? 60,000. y is equal to कितना? 48, 16 7s are 112, 3750. तो इन्वेस्ट किया 3750, मायरा को दिया 6250। दिस इज स्कूल वाला मेथड जो हमें पढ़ाया जाता था, उसी मेथड से मैंने करके दिखाया। प्लीज राइट इट डाउन। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, आर्ची तुम्हें भी समझ में आए? Yes, sir. ठीक है, ये लिख लीजिएगा, दिस इज कन्वेंशनल मेथड। सो आई एम गिविंग यू 3 मेथड्स। पहला वाला एवरेज, मान लो सबको 8% मिला, आपने कहा सर इसमें 4% फालतू मिला है, ठीक है, तो 4% ऑन समथिंग फॉर 4 ईयर इज 16% फालतू, जो हमने पहले किया था, उसको सम करा और हमारा आंसर आ गया 3800 के बराबर। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप ये करो, ये तो बिल्कुल मत करना, लेकिन फिर भी लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है, लेटर ऑन यू कैन आल्सो चेक इट थ्रू रिकॉर्डिंग, कुछ मिस कर गए तो। हो गया मैम? नीचे लिख लो, सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन विल गेट y इज इक्वल टू 3750। ठीक है, आगे चलें। एक बार मुझसे दोबारा पूछा गया, छोड़ो आप, 10,000 को हमने 2 पार्ट में ब्रेकअप किया, एक मायरा को दिया और एक इन्वेस्ट किया। मायरा को जो दिया था वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया था 4 इयर्स के लिए, जो इन्वेस्ट किया था वो 12% इंटरेस्ट के लिए हिसाब से किया था 4 इयर्स के लिए। आफ्टर 4 years the interest that we earn was rupees 3,800। ठीक है, हमने कहा ये 12% मत लिखो, इसे 8 + 4% लिखो। तो सर टोटल आपके पास, मेरे पास 10,000 है, आपको 8%, मुझे नहीं पता कितना पैसा आपको मिला, कितना मुझे मिला नहीं मालूम, लेकिन आपको 8% उस पर रिटर्न मिलता, मुझको भी 8% मिलता है। एक ही बात हुई ना कि 10,000 पे 8% रिटर्न मिला, तो 10,000 पे 8% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैंने दोनों का 8 ले लिया। 4 इयर्स में कितना मिलेगा? 3,200 रुपीज मिल जाएगा। आप कहोगे क्यों भाई ये 4% क्यों छोड़ दिया इसका? हमने कहा पता नहीं क्या अमाउंट था, मान लेते हैं एक्स अमाउंट है, उसका 4% इन 4 इयर्स में 3,800 माइनस 3,200 मिलेगा 600। तो 16x अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 60,000 बाई 16। देख लो सेम। तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? हाउ मच यू इन्वेस्टेड? यू इन्वेस्टेड 3,750। और मायरा को कितना दिया है? 10,000 माइनस 3,750 व्हिच इज 625। इज इट फाइन नाउ?
ठीक है, क्लियर? यू स्टिल हैव डाउट इन दिस? ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. कितने साल बाद दोनों के पास बराबर पैसा होगा? आपको सुनना है और कुछ नहीं करना. ठीक है. वीरू इन्वेस्टेड 10,000 at 5% interest, simple annual interest. Exactly after 2 years, Joy invested 8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balance, the principal plus accumulated interest, be equal? ठीक है. कितने साल बाद वीरू के इन्वेस्टमेंट के दोनों के पास बराबर पैसा होगा, मतलब इनिशियल से कितने टाइम बाद both of them will have equal money. When Joy came in, there were already 2 years and it is a 5% interest that Viru was getting in a year. तो 2 years में कितना मिलेगा उसे? 10%. सिंपल इंटरेस्ट है, 10% मिलेगा. 10% कितना होता है 10,000 का? 1000. मतलब उसके पास 11,000 हो गए जब तक कौन आया? जॉय आया. इज इट क्लियर? 2 साल and Viru is having 11,000 rupees with him. He is still getting कितना percent? 5%. 5% on 11,000 or 10,000? 10,000. 10,000. 5% of 10,000 कितना होता है? 500. 500 rupees. उससे ब्याज मिलेगा. Joy came with 8,000 rupees. How much interest he is making? 10%. 10%. What is 10% of 8,000? 800. How much he is getting more than क्या नाम है वीरू? 300. 300. तो वो 300 रुपए से कंपनसेट करेगा. But Viru is at 11,000 and Joy is at 8,000. How much is the gap between them? 3,000. हर साल 300 क्लोजर जाएगा कौन? Joy Viru के. So Joy will get closer by 300 rupees every year. In 10 years, he will cover those 3,000 rupees. So what should be your answer? 12. From the beginning, from the Viru's time when he invested. So it comes out to be 12. Yes, sir. There was a question asked to me. Sorry. हाँ विवेक, कोई डाउट था? नहीं सर, मैं आंसर बता रहा था. अच्छा ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा? कितना आया आंसर? सर वो मैंने दूसरे तरीके से किया, मतलब कि बताओ यार. 8,000 में 800 ऐड करते गया और 12,000 उधर बना तो उसके नियरेस्ट चला गया, वैसे करके. अच्छा, अभी जो मैंने बताया वो मेथड समझ में आया आपको? मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो मैं ये निकालते रह गया. सॉरी. When Joy came with 8,000 rupees and he was getting a 10% interest, मतलब the simple interest that he was getting is 800 rupees. ये समझ में आया आपको? हाँ सर. हाँ. वीरू ने 10,000 rupees इन्वेस्ट किया था साहब at the rate of 5%. तो what is the simple interest that he get? 500 rupees. ठीक है. 2 years hence, the amount with Viru was 11,000. 500 रुपए हर साल मिले, 2 साल बाद में 1,000 रुपए और मिलेगा, 11,000 हो जाएगा. At that time, Joy joined in with 8,000 rupees at the rate of 10%, means he is getting a simple interest of 800. Which one is more, 800 or 500? 800. 800. Abhi Joy is getting 300 more every year, but he need to compensate Viru by 3,000. So to compensate 3,000 at the rate of 300, it will take कितना years? Joy को 10 साल लगेंगे. लेकिन हम तो कह रहे हैं वीरू के इन्वेस्टमेंट के बाद बताओ कितने साल हो गए. What should be your answer? 12 years. Answer is 12 years. So again, I am saying it is the logic which is more important than anything else. Is it fine? Clear? कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं. अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये क्या लाइनें वगैरह खींच देते हो आंसर बताने के लिए, कुछ कन्वेंशनल मेथड बताओ. When Joy joined in, Viru had
11,000 rupees with him. ठीक है, plus he is getting 500 every year for n years. The joy came in 8,000 rupees. He is getting 800 more in n years. दोनों को इक्वेट कर लो तो 300 n is equal to 3,000, n is equal to 10 years. तो फ्रॉम द बिगिनिंग, वीरू के बिगिनिंग से it took 12 years. Whatever you like. ठीक है, फाइन, डाउट है पक्का, पूछिए बताओ। ठीक है, 300 रुपए का बढ़ोतरी है, 3,000 के लिए 10 साल से स्टार्टिंग के 2 साल और लगाए थे वीरू ने, 12 साल हो गए। फाइन, ठीक है, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? लिखने की जरूरत तो नहीं थी इसमें मेरे ख्याल से, वी जस्ट थिंक वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, लेट्स कम टू दिस वन। ठीक है, तो लगेगा लाइनें खींच दी आंसर निकाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, विल गो बाय कन्वेंशनल मेथड फर्स्ट। हाउ मच इज द मनी? 15 लाख का कुछ पार्ट x रुपीस हमने 6% एनुअल इंटरेस्ट पे डाल दिया। दूसरे पार्ट को हमने इसके 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2:1 वाला, 2y एंड y ले लो, क्योंकि रेशियो इज 2:1, तो हमने कहा दिया एक 2y एक y। इस पे 2y वाले पे तो आपने 4% इंटरेस्ट लिया और y वाले पे आपने 3% इंटरेस्ट लिया। ठीक है, तो पहला मुझे पता चला अमाउंट कितना हुआ x। इधर देखो, जब मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आप इधर देखेंगे। ठीक है, ईच वन ऑफ यू, इवन पीपल हु आर ऑनलाइन, स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है, सो 2y प्लस y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 15 लाख। कैन आई से टोटल पैसा 15 लाख था? ठीक है, आई एम गेटिंग 6% ओवर x। परसेंटेज का आप सब कहानी जानते हैं, अपॉन 100 होता है। 2y पे आई एम गेटिंग 4%, y पे आई एम गेटिंग 3%, बट दिस कम्स आउट टू बी 76,000। ठीक है, हमने ये करा अपॉन 100 को भाई इकट्ठा लिख लो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस 3y इज इक्वल टू 76,000। तो ये 6x प्लस 11y आ गया इज 76,000 इंटू 100, 76 लाख। और डरे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाख इज 10 टू द पावर। आपने कहा सर एक इक्वेशन ही आई, और आपको ये भी पता है x प्लस 3y कितना होता है? 15 लाख दिया हुआ था भाई। हमें क्या चाहिए? फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा निकालना? हमें x निकालना है, तो हमें y कैंसिल करना चाहिए। कौन पहले x निकाले फिर y? इसको 3 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 18x प्लस 33y इज इक्वल टू 76 इंटू 3, 3 6 18, 228 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, और इस वाले को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से। 11x प्लस 33y इज इक्वल टू 15 इंटू 11 इज 165 इंटू 10 टू द पावर 5। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7x इज इक्वल टू 63 इंटू 10 टू द पावर 5, 7 9s, तो x इज 9 लाख। इज इट फाइन? कन्वेंशनल मेथड, कुछ नहीं लगाया, स्कूल का मेथड है वही लगाया। इज इट फाइन? क्लियर? 24 कैसे है? कौन सा वाला? कौन सा वाला यार? 24? अरे यार भाई, थोड़ी मेरी राइटिंग ना खतरनाक है। तो ये 2y है इंटू 4%, ये y है इंटू 4%, ये लीजिए, भी ठीक लगाया ना? ठीक है, क्लियर? थ्रू दिस वे यू कैन गेट द आंसर। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है, आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट। आपके पास मोबाइल है तो फोटो खींच लो, घर पे जाके नोट्स बनाना। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देख लेना बात। ठीक है, डोंट राइट, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर। कैन आई कम टू द शॉर्टर मेथड?
सर कैसा लगा? गुस्सा तो नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों यार, शॉर्टकट इसलिए मैं सोच रहा था कईयों को शॉक लग रहा होगा ये क्या करा रहा है. Okay, so here we go. अभी there are two methods which are coming. Let's take up एक मेथड करते हैं पहले. हमने कहा 15 lakhs को we need to break up in two parts, x and y. Y is further broken up in 2 and 1 part. Here the ratio of the interest is 4%, here it is 3%. ठीक है, 2 पे 4% मतलब 2 into 4, 1 पे 3% डिवाइडेड बाय एवरेज कितना आ रहा है, तो 8 + 3 is 11/3% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा. इस पूरे सम में मुझे 11/3% इंटरेस्ट मिल रहा होगा. क्या बात समझ में आई? हाँ क्या, सॉरी, बाई 3 करा एवरेज ना, 2 इसका 1 इसका, तो पर यूनिट पे कितना मिल रहा है? आर यू गेटिंग इट? क्योंकि ये तो टोटल मिला के आप कहोगे, लेकिन सर यूनिट तो आप पर यूनिट निकालोगे ना. जैसे आपने कहा 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर 100 रुपए पे 6 रुपए मिलते हैं. आपने यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 4 2 8 + 3 11% मिल रहा है. अरे भाई 11% थोड़ी ना मिल रहा है. 2000 रुपए यहाँ है, 200 रुपए यहाँ है, 100 रुपए यहाँ है, 300 रुपए पे आपको 11 मिले, तो हर एक पे कितना मिला? 11/3% तो मिलेगा. परसेंट का मतलब था पर 100. तो अगर आपने इसके 2 पार्ट ले लिए, इसके 1 पार्ट ले लिया, 3 पार्ट्स पे यू आर गेटिंग 11%, 1 part पे you will get still 11/3. Is it fine now? Why we are dividing it? Because it is per unit. हाँ बोलो, समझ में नहीं आया? सर इसके 2 पार्ट्स पे आपको 4% मिला, तो 2 4 जा 8% इंटरेस्ट मिला सर आपको. ठीक है, इसके एक पार्ट पे आपको 3% मिला, तो टोटल मिला के 11% मिला है. 11% आपको y पे मिला है, लेकिन y कितना है? 3 यूनिट्स है, तो हर एक पे कितना मिलेगा आपको? डिवाइड बाय 3. क्या मेरी बात समझ में है? इट इज पर यूनिट के हिसाब से क्या मिलेगा. इंटरेस्ट तो होता है ना पर 100 पे, तो वो मुझे निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा. इज इट फाइन, क्लियर? ठीक है सर, ओके. अब यहां से 2 स्टेप्स बनते हैं. मैं आपको, ठीक है, मैं आपको 6%, कैन आई राइट इट एज 11/3 प्लस 6 - 11/3 कितना होता है? 7/3. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? और दूसरे वाले पे तो आपको 11/3% मिल रहा है. अगर दोनों पे मुझे 11/3% मिल रहा होगा तो ओवरऑल 15 लाख पे मुझे 11/3% मिलेगा. हाँ ना, बताओ. 3% का मतलब 15 लाख इंटू 10⁵ है. परसेंट का मतलब होता है पर 100. ये कैंसिल करो भैया, 1000 5 करो, तो ये 55,000 आ गया. 10⁵3 का मतलब 1000 होता है, 10⁵3 का मतलब 1000 होता है, तो 55,000 मुझे यहाँ मिल गया. आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर, 11/3% में, अभी तो इसका 7/3% और बचा है. तो x अमाउंट के ऊपर आई एम स्टिल गेटिंग 7/3% मोर, विच इज इक्वल टू 76,000 टोटल आ रहा है. 55,000 रुपए तो मैं कमा चुका हूं, कितना बचा है? 21,000. बहुत बढ़िया. तो x इंटू 7/3%, परसेंट का मतलब सबको पता है 100 होता है. 7 3s, x इज इक्वल टू 3 3s 9 इंटू 5 zeros, 9 लाख रुपए आ गया. हमने कहा भैया इसमें 9 लाख रुपए लगाए. दिस इज अनदर वे. क्या ये क्लियर हुआ? उससे थोड़ा कम कैलकुलेशंस होगा. और एक और मेथड, ये निकालने के बाद इतना तो निकालना ही पड़ेगा. एक पे 6% मिल रहा है, एक पे 11/3% मिल रहा है. ओवरऑल आपको 76,000 मिलता है 15 लाख पे. तो कितना परसेंट हुआ? तो यार ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए. 15 5 जा 75, 1/15. तो दिस कम्स आउट टू बी 76/15. हाउ मच इज चेंज? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 55, 76/15 माइनस 55/15, ये कितना हो जाएगा? 6 - 76/15 मतलब ये 90 - 76/15, ये आ गया कितना? 14/15. ये कितना आया? 21/15. तो आपने कहा 21/15 पहला आया, दूसरा वाला 14/15. इनका रेशियो क्या होगा फटाफट बताओ? 3:2. कितना रेशियो होगा? 3:2. 5 ratio is 15 lakh, 1 ratio is 3 lakh, 3 ratio is 9 lakh, 2 ratio is 6 lakh.
करेंगे इसको आगे। बताना चाहता हूँ कि इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, सही है ना? तो ये भी एक तरीका है जो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल एलिगेशन इज नॉट व्हाट वी टच। यू गो बाय दिस मेथड, ये वाला मेथड आपको आना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी दुविधा हो आपको। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है पर 100 हाउ मच यू आर गेटिंग। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि 2:1 को हमने 3 से क्यों डिवाइड किया, मान लेते हैं 200 रुपए यहां थे, 100 रुपए यहां थे, इस पे आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने टोटल पैसे कितने कमाए? 8 रुपीज। यहां कितना कमाए? 3 रुपीज। आपने 11 रुपए किस पे कमाए हैं? 100 रुपए पे, 300 पे। तो जो इंटरेस्ट परसेंट होता है तो उसको ऐसे ही तो निकालोगे यार, 11/3। इज इट फाइन? दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड बाई 3। तो किसी को अभी भी डाउट हो, ऐसा लग रहा हो, इसलिए भैया 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 300 रुपए में आपने 11% कमाया। 1 पे यू आर गेटिंग 11। ठीक है, पहले एक बार आप लिख लो, आई विल इरेज दिस पार्ट। ये समझ में आ गया कि एक 11/3 ये कर लिया सबने। एक पे आपको मिल रहा है सर 6%, एक को 11/3% मिल रहा है। ओवरऑल आपको 76,000 मिलता है 15 लाख में। मैंने कहा इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है इंटू 100। 50 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है एक पे 6% मिल रहा है, एक में 11/3% मिल रहा है। ओवरऑल इट इज 76/15 दैट आई एम गेटिंग। इज इट फाइन सर? सर व्हाट इज द चेंज हियर? ये देखो, ये तो 5 से भी ज्यादा है, तो 76/15 माइनस 11/3। वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। रूल ये है कि वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इसका डिफरेंस डायगनली अपोजिट साइड निकालते हैं, इस तरफ निकालते हैं इनका डिफरेंस, और यहां का डिफरेंस डायगनली अपोजिट साइड निकालते हैं। तो आई विल से 6 माइनस 76/15। 15 6 90 माइनस 76/15 आएगा सर। और ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता तो अच्छा लगता है। तो 76 माइनस 55/15। क्या मेरी बात समझ में? इस रेशियो में द क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड। तो ये कितना हो गया सर? 55 सेपरेट करा आपने, तो ये 21/15 हो गया। ये कितना हो गया साहब? 14/15 हो गया। देखो रेशियो में कॉमन वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल हो जाती है, तो इसका मतलब द मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्वांटिटी का रेशियो होता है साहब। किसका रेशियो होता है ये? क्वांटिटी, वॉल्यूम का रेशियो होता है। इसे क्वांटिटी, वॉल्यूम, जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। आपने कहा 3 and 2 मतलब 5 रेशियो इज इक्वल टू कितना? टोटल पैसा कितना है? 15 लाख। तो 1 रेशियो कितना सा? 3 लाख। तो 3 रेशियो मुझे इसका चाहिए था, इसका 3 रेशियो कितना होगा? खत्म, आपका आंसर आ गया 9 लाख। ऐसे करके करते हैं। यू राइट द डिफरेंस ऑन द डायगोनली अपोजिट साइड, बट डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए सा। इज इट फाइन? दैट गिव्स यू द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट। जब तक एलिगेशन रहूंगा तब तक तुम्हें ये याद ही हो जाएगा, बट उसके बाद तुम्हें और अच्छा लगेगा। Should we move to the next one now? थोड़ा मुश्किल काम है सुनना किसी की, लेकिन फिर भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। Alex invested his saving in two parts. The simple interest earned on the first part is 15% per annum for 4 years. 15% for 4 years, how much we will earn? 15 fours are 60. 60% is what I will earn of my first part. That is same as the simple interest earned on the second part at 12% for 3 years. 12%, 36%. मतलब पहले का 60% है, सेकंड का 36% के बराबर। मतलब पहला अपॉन सेकंड इज 36/60। Right? 15 fours are 60% of first part is equal to 36% of second part. Can I say x upon y is 36% upon 60%? अब percentage common आ रहा है, कैंसिल करो। 6 6 6 10 3/5। तो अगर 3 इधर इन्वेस्ट किए तो 5 इधर इन्वेस्ट किए, तो टोटल में से पहले वाले में कितना इन्वेस्ट किया है?
3/5 नहीं, 3/8 टोटल में से 3/8, 1/8 होता है 12.5%, याद करो, करवाया मैंने सबको। 3/8 जिनकी क्लासेस छूट गई होंगी दे कैन कम एट 11 to 1 टू कवर, नहीं तो रिकॉर्डेड भी पढ़े सेशन, बट कम एट 11 to 1, आई वुड प्रिफर दैट, सो दैट कम्स आउट टू बी 37.5%। इज इट फाइन? दैट्स योर आंसर। हमने इतना ही सोच लिया था, मैंने कहा x, अब सुनो, मैं कहा 36/60 हो गया, 6/10, 3/5, मुझे समझ में आ गया। पहले अपॉन सेकंड का रेशियो इज 3/5, तो फर्स्ट इज 3/8, 1/8 इज 12.5%, 3/8 इज 37.5%। खत्म, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन। कैन यू थिंक? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं भाई, क्लर्क नहीं बनना हमने। नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू राइट एज लेस एज पॉसिबल, and that is only possible when you think more. It's better to fail. ठीक है, मुझे लगता है कि लंगड़े साथ में बैसाखियां लेने से बेटर है that it's better to fail. ठीक है, तो ट्राई करो, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, बट once you will reach at the position where you will be able to get the answers. ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? भैया दिमाग लगाना है। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, very nice. Let's come to the next one. Question number 6. Can you answer it without hitting anything? 3% of 7,000. 2100। हाँ जी, कितना? 2100 3%। उसका हाफ करना पड़ेगा बिकॉज द 7,000 इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, बाकी सब सही है। गुड, हियर वी गो। 7,000 इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। आई एम टेलिंग यू हाउ डिड आई थिंक। मेरे ख्याल से एक मास्टर का काम यही होना चाहिए था, मैंने कैसे सोचा तुम भी वैसे ही सोचो, ठीक है ना? और a time will come when you cross me, आना चाहिए, भगवान करे वो कहाँ। So you are getting 8% for 3 years. Can I say you are getting 24% on this? Overall principal पे 8% हर साल, 3 years में I will get 24%, and 10% I am getting compounded annually for 2 years. तो आपको पता है 10 + 10 + 10 into 10/100, अब तक तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि 21% आएगा। 10 + 10 + 10 पे भी 10%, मतलब 1% और 21%। What is the gap between them? 3% of मैंने 7,000 निकाल दिया। ध्यान से सुनो, आपने कहा सर 7,000 नहीं था, क्योंकि 7,000 वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इट वाज 3,500। नहीं, मैं तो 7,000 का निकालूंगा, क्योंकि 7 3 21, 210 रुपए आते हैं, लेकिन मुझे तो हाफ अमाउंट का चाहिए, तो आई विल हाफ इट। 210 का हाफ कितना होता है? 105। आई विल से द आंसर इज 105। इज इट फाइन? ठीक है, बिकॉज द मनी 7,000 डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, तो 35 एक्चुअली में तो 35 into 3 भी जानता हूं, 105 होता है। तो आप चाहते तो 3500 का 3%, 1% is 35, 3% is thrice of it, which is equal to 105. My answer would have been 105. Is it clear? ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आपको आया मैम? पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये एलियन कहां से आया? नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस। और लिखना नहीं है इस क्वेश्चन को, लिखना इज अ पाथ हियर। You see and answer it, because similar type of question have been asked in CAT. %8 है कोई ऑप्शन? अच्छा, कैसा क्वेश्चन है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। हमें नहीं पता कितना पैसा था, 2 years के बाद पैसा हो गया 625।
This is amount. This is amount. This is not principal amount. एक साल बाद और this becomes 675. कहने का मतलब है कि मैंने 50 रुपए कमाए. किस पे कमाए 50 रुपए? X पे 625 पे. क्योंकि भाई जो पिछला अमाउंट है उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मुझे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है. इसलिए ओवर दिस होल अमाउंट आई एम गोइंग टू अर्न 50 रुपीज. 25 टू 25 का स्क्वायर होता है 625, शायद पता होगा. 1/25 4% होता है भाई साहब, सुनिएगा. तो 2/25 कितना होगा? 8%. ये सोच के आंसर देना है. सोचो, ट्राई, थिंक, यू कैन आंसर. Am I right? Any question you can ask. कोई भी सवाल आप पूछना चाहे, कुछ भी. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कुछ भी, एनीथिंग. अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार तुम लोग कन्वेंशनल क्यों नहीं बताते, ये 625 होगी. ऐसे मुझे दिमाग में आया कि यार कोई परेशान ना हो उसके लिए. दिस इज 675. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. डिवाइड इक्वेशन 2 by equation 1. तो 675 by 625 is equal to x. x कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, तो मैं काट के भी दिखा देता हूं. वन बचेगा. आपने कहा 1 plus r upon 100 is equal to 675 upon 625. मैं कैंसिल करूंगा तो ये 1 plus 50 by 625 बचेगा. 1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया. r upon 100 या r is equal to 50 upon 625 into 100. तो 25 4s are 25, 25 2s are आ गया लो 8%. This is conventional method. You can also get answer by this. तो बुराई नहीं है, ऐसा ही कर सकते. ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है. You can also go by this. मोबाइल चालू रखिएगा, बहुत सारा काम का है, उसका कैमरा अगर चलता है तो फोटो खींचते रहना, घर में जाके नोट्स बनाना. रिकॉर्डेड सेशन आपके मेल आईडी पे आ गए होंगे, मेरे ख्याल से ड्राइव में सबके हैं. यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर. Should I move to the next one? Let's try to find out the answer of it. Think. I've got my answer. एक बार मैंने एक स्टेटमेंट बोला भी था आज की क्लास में. The difference between compound interest for 2 years and simple interest for 2 years is Interest over interest over interest of first year. मैंने आज बोला था. अच्छा, can we try to answer it without writing anything? Could you listen? मतलब काम करते हैं तो सुनिएगा मेरी बात. 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2880 मिला है, तो हर साल कितना मिला होगा? 1440. 1440 is what you are getting every year because simple interest is same for every year. How much you are getting more in compound interest? 160. Very good. लिखा हुआ है. तो 160 I am earning over the last year interest. And what was the last year interest? 1440. 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 16 upon 144. पहाड़े याद कर लेना, मैंने पहले ही कहा था. 16 9s 144 होता है. तो 16 upon 144 is 1 upon 9. 1 upon 9 कितना होता है सर? पढ़ाया था यार. 11.11% कोरिलेशन, आपसी संबंध 9 और 11 का. तो I'll say 11.11%. What should be your answer? Is it fine? Simple interest for 2 years is 2880. सिद्धार्थ, आपको याद है हमने डिस्कस किया था ये? Yes, sir. So what I'll do is I'll divide it by 2. I'll say it is 1440 is the interest for every year. The difference between compound interest and simple interest for 2 years is the interest earned over interest of first year. यही मैंने बताया था आपको. तो मैंने कहा इसका मतलब 160 is what I'm difference is 160. तो 160 I earn over 1440.
16 nines are 144, 1 by 9 is 11, 1 by 9. 11.11%. Is it fine, clear? Concept clear हो? मुझे लिखना नहीं है भाई. ठीक है? If you are planning 30 lakh, think like a 30 lakh, think like a 40 lakh. Sorry, मतलब लग रहा होगा कि exaggerate कर रहा है, लेकिन ऐसा सोचना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास. Should we move to the next one? Becomes मतलब 1440 is amount principal or interest. 1000 रुपए 2000 रुपए हो गए एक साल बाद, तो 2000 इज इंटरेस्ट और 2000 इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. बहुत बढ़िया, इतना मालूम है तो आप ये आंसर निकाल सकते. X amount after 2 years becomes 1440. After 1 more year, it is compounded annually. It becomes 1728. Becomes मतलब हो गया है. So you will say you earn 288 rupees over not X, over 1440. 20% is the interest. Am I right? खत्म. सोच सकते थे वैसे भी, आप सोचो 288 का डिफरेंस है यार. 288 1440 का कितना परसेंट होगा? 20%. 10% is 144. 288 will be 20% of it. My answer is 20%. ठीक है, clear? Very nice. Let's come to the next. Clear online? Siddharth, RC. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Let's come to the next one. कितने टाइम में आंसर आ जाना चाहिए आपका? सोचो. आंसर बताओ. 100 रुपए का डिफरेंस है. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 5 का 5% होता है 0.25. 0.25% इज 100 रुपए, तो 1% इज 400. 0.25 is 100, तो 1% multiplying both sides by 4 is 400. So 100% is 400 into 100. How much is that? 40,000. 400 into 100 is 40,000. Is it fine? Clear? The rate of interest is 5%. In case of compound interest, we all know it is 5 plus 5 plus 5 into 5 upon 100. While in case of simple interest, you know it is only 5 plus 5. So what extra you are getting? You are getting 5% over 5% means 0.25% of the principal amount is 100 rupees. 1% of the principal amount is 400 rupees. 100% of the principal amount is 40,000. मुश्किल है? बहुत आसान है. Think. 90,000. 90,000. Okay, बहुत बढ़िया. If you can listen to me, 3 years simple interest is how much? At the rate of 3%. How much is that? 9%. ठीक है. What about 5% rate of interest? Say for 2 years, you will get 5 plus 5 plus 5 into 5 upon 100, which is 10.25. 10.25 minus 9% is 1.25. 1.25% of the principal amount, percent of the principal amount is equal to 1125. मैंने 125 का टेबल देखा, मैं कहा 125 टेंजा होता तो 1250 होता है. It is 125 less. So should I say this is 9 times? तो this is percentage का, दोबारा percentage cancel करूंगा तो 2 0 और आ जाएंगे. That comes out to be 90,000. You are right, sir. Very good. Is it fine? This is how you can find the answer. लिखना भी क्यों? अच्छा, मैंने और सोचा डिवीजन के टाइम पे, मुझे टाइम सिर्फ यही लगा 125 से डिवाइड करने में.
मैं 25 4s 25 5s 9 आ गए, तब भी ठीक। परसेंटेज का वो 1.25 का अपॉन 100 आएगा और परसेंटेज का एक और 100 आएगा तो 10,000 और हो जाएगा। 9 into 10,000 is 90,000। Is it fine? Clear? ठीक है, let's come to the next one. You are slow. सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो एक साल में तो 6% होगा, बट 6 मंथ्स में कितना होगा? 3% होगा। कंपाउंडिंग एनुअली सेमी एनुअली, इसका मतलब 1 ईयर में कितना मिलेगा? 3 + 3 + 3 into 3 upon 100, 3 पे भी 3% लगेगा, विच इज 6.09%। इज दैट फाइन? दोबारा बता देते हैं। एक जगह लिखा हुआ है एक कंपाउंडेड एनुअली होता है, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा। जैसे 12,000 अमल इन्वेस्टेड 12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, while 10,000 एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक साल का तो 6% है, लेकिन जो इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स। तो मतलब यू आर गोइंग टू गेट 3% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन एवरी 6 मंथ। तो 3% और उसके बाद दोबारा 3% मिलेगा, तो पहले वाले 3 पे भी 3% और मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए इट इज 6.09%। ठीक है, शुड आई? किसी का आया आंसर? 13,612 20,920। ओके, अप्रॉक्सीमेट मतलब। ओके, very good, Vivek and Siddharth. You have also given the same answer. Okay, 8% interest over 12,000 and 10,000 pay 6% interest compounded semi-annually. This is, I have already explained, there is 6.09% of the interest that you are going to get. 10,000 pay 6.09% interest कितना होगा? 609 rupees। सही कह रहा हूँ ना? ओनली 1 ईयर, तो इसमें पहले वाले में कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा नहीं। 12,000 पे 8%, 12 8 96 होता है, तो 960 रुपीज इज व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस। द टोटल मनी दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज 1569। बिमल ने कुछ X% इन्वेस्ट किया एट 7.5% फॉर 1 ईयर एंड ही इज गोइंग टू गेट 1569। ये क्या? हाँ, हाँ, तो मुझे क्या मिला? मुझे टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 6.09% मिला ऑफ 10,000। ठीक है, क्योंकि 3% मुझे पहले, जो भी मेरे पास अमाउंट था 10,000, उस पर मुझे 3% पहले मिला 6 महीने में, फिर दोबारा 3% मिला। ठीक है, तो 1.03 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दैट इज 106,106,09 ऐसे करके आता है। तो 1.06 तो मतलब कितना बढ़ा है यार? 10,000 होगा तो 10,609 हो जाएगा ना, तो 609 रुपये ही तो बढ़ेगा यार। ठीक है, क्लियर? ओके, I'll say 25 3s are 25 40, 3 5s are 3 2s are 3 3s are, x comes out to be 0, 3 4s are 12, 4 2s are 8 9, 20,920। This is how you, हाँ ठीक है, चलेगा। टाइप इन वाला था तो मतलब टीटा बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको टाइप इन में अगर गलती हो गई तो गया। मतलब अगर आपने 20,919 भी लिख दिया तो भी दिक्कत है। ठीक है, टीटा बेस्ड क्वेश्चन में यू नीड टू राइट द करेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेशन विल नॉट वर्क। ठीक है, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Okay. Let's do it. Okay. So 10,000 pay, there was a loss. Some percentage of loss. I don't know how much is loss over 10,000. मान लेते हैं R% का लॉस है। ठीक है, लॉस मतलब माइनस। फिर हमने कहा अमाउंट जो हो गया वो कितना हो जाएगा? मान लो X अमाउंट रह गया, इसमें 5R% का प्रॉफिट है, विच इज इक्वल टू 10,000 का कितना परसेंट रिटर्न? 35% रिटर्न। एम आई राइट? 35% इज द रिटर्न, ये लिखा ना? The gain of Raj for the initial investment over the 2-year period is 35%. 35% का total investment है। Find the percentage loss in the first year. पहले साल में कितना % loss हुआ?
तो 70% तो होने का सवाल ही नहीं उठता। 15 5 75% का गेन इज ऑल्सो लिटिल डाइसी। हम इन दोनों में से देखो, आपका आंसर बचा है 5 10 और 15 में से एक आंसर होगा। 10 उठा के रखता हूं, क्योंकि 10 से अगर आपका आंसर ज्यादा आ रहा होगा तो 5% आंसर होगा, और 10 से कम आ रहा होगा तो आंसर क्या होगा? 15%। I'll say there's a 10% drop. 10,000 का 10% ड्रॉप कितना हो गया भाई? 9,000 is the fund. Am I right? 10% of 10,000 is 1,000 less. तो which is 9,000 now. 50% बढ़ा दो 9,000 का, 4,500 हो गया। 9,000 प्लस 4,500 कितना हुआ? 13,500, जो कि 10,000 के मुकाबले कितना परसेंट गेन है? 35%. Satisfying my option. Is it fine? That would be much more easier. Go by options. सही कह रहे हैं? मेरे पास 5 10 and 15 75% अगर बाई चांस में ले लूंगा, 70% ले लूंगा, तो यार 70 का 5 टाइम्स इज 350%। अब बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, 350%, वो तो नहीं लगता। मैंने कहा यार इन तीनों में से कोई एक लगेगी। इज दैट 3,000 का 350% भी अराउंड 10,000 के ऊपर ही बैठेगा, हाँ। इसलिए उसमें 5,000 वाली चीज लिखी हुई है। बिल्कुल, कि मतलब बहुत ज्यादा अगर 5,000 से, इट वाज मोर देन 5,000, अगर 5,000 से कम होगा तब जाके, अगर 5,000 रुपए भी होगा तो 5,000 का 350% तो 15-17,000 के करीब चला जाएगा। मतलब सोचो ना, इतना ग्रोथ होगा तो मतलब 20,000 रुपए चला जाएगा। तो आपने कहा नहीं सर ये तो नहीं लगता, ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ। इज इट फाइन? ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्या सक्सेसिव परसेंटेज? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी यूज कर सकते हैं। -r, फिर आपने कहा +5r इंटू -r अपॉन 100 इज इक्वल टू 35%। लगा लो, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 5r स्क्वायर बाई 100, ये मतलब ये 20 हो जाएगा। मतलब वो कभी ना कभी आपको ऑप्शन डाल के ही करना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड। 80r 700, r स्क्वायर माइनस 80r प्लस 700, या तो ऑप्शन करूं, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू 70 एंड 10 आ जाएगा। 70 में तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर 10% आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर अलजेब्रा आ जाएगा। गो बाय ऑप्शन इन दैट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये करिए। सर 2436। 2436, ओके। 609 का 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, ओके। सर 2436। there are 3 बैंक्स, कईयों को समझ में नहीं आया होगा 609 का 4 टाइम्स क्यों होगा। A पे it is 6% rate of interest compounded half yearly, so I'm sure you know this value, that is 6.09%, ठीक है। B and C बैंक में offer simple interest with annual interest rate offered by C is twice, इसका रेट R%, इसका 2R%। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट, राजू भाई यहां पर है। बैंक बी अ सर्टेन टाइम पीरियड इज T। रूपा इन्वेस्ट, रूपा का अमाउंट इज 10,000, ट्वाइस ऑफ दैट पीरियड, टाइम पीरियड इज 2T, ठीक है। The interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount in for 1 year. तो मैंने कहा जितना इंटरेस्ट यहाँ कमाएगा, ठीक है, राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड T टाइम के लिए जितना इंटरेस्ट यहाँ कमाएगा उतना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से कमा लेता। तो मैंने कहा इसका मतलब 6.09% कमाएगा। कितना कमाएगा? 609%। प्रिंसिपल P है इंटू R इंटू T अपॉन 100 is equal to the money that he will earn. It is 609% of A वाले पे, ठीक है। यहां पर क्या है भाई? प्रिंसिपल इंटू 2R इंटू 2T, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया? ये 4, मतलब R का भी डबल, T का भी डबल, तो 4 हो गया। तो शुड आई से 4 टाइम्स मतलब 6.09, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, इसका 4 टाइम्स इज 24.36%, हाँ ना?
तो 10,000 का, बिकॉज अमाउंट इज गिवन हियर, 10,000 का 24.36% कितना होगा? 2436. इज इट फाइन? क्लियर? नहीं आया? 4 टाइम्स क्यों करा सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है, टाइम भी डबल है, और सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो सर अगर R डबल करोगे, T डबल करोगे, तो ये पूरा वैल्यू 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा? 4RT अपॉन 100, 4 गुना हो गया है. और ये 6.09% दे रखा, तो उसका 4 गुना कितना होगा? 24.36%. ऑफ 10,000 लिखा हुआ है 10,000 रुपए अमाउंट, कहीं लिखा है ये रहा. तो 10,000 का 24.36% इज 2436. Am I right? This is how you can answer. हमने कहा कि A पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.09%, और हमने कहा ये जो राजू है ना, ये कुछ पैसा लगाता है और इसको इतना ही इंटरेस्ट मिलता है. लिखा है देखो, the interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would accrue had he invested the same amount in bank A for 1 year. एक साल में अगर पैसा लगाएगा उतना ही पैसा मिला. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके मुझे 6.09% मिला. R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज क्या पता 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, मेरे से कुछ लेना नहीं. आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर लोगे तो 6.09 का डबल होता है 12.18. आपने कहा टाइम पीरियड भी डबल कर दिया मैंने, तो टाइम पीरियड भी डबल कर लिया, तो 12.18 का डबल कितना हो गया? 24.36. तो आपने कहा 24.36% मिलेगा. फिर लिखा हुआ रूपा तो भैया 10,000 रुपए लगाती है, तो 10,000 का 24.36% इज हाउ मच? 2436. इज इट फाइन? खत्म. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. करिए. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, 2 years नहीं कह रहा मैं, 806.25. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. आप कहेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या डिफरेंस रहता है? मैं कहूंगा मैं तो सेम कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए. आप कहोगे नहीं सर क्या कर दिया ये, इट इज मोर. कितना मोर? ऑलमोस्ट 60.5 मोर अप्रोक्सीमेटली. 4.8 लगाओगे, 4.7 लगाओगे, तो मैंने कहा यार लगा लो यार 60. ये पैसा मैंने किस पे कमाया है? ये मैंने अभी तक के ब्याज पे कमाया. 806.25 जो सेकेंड ईयर तक का इंटरेस्ट आया उस पे कमाया मैंने 60 कमाए 806. मतलब कैंसिल करके ये हो गया. 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, and 8 8 9 जा 72, 8 10 सॉरी 6 से करा ना, तो 6 अपॉन कितना हो गया? दिस इज कमिंग आउट टू बी 60.50 अपॉन 806 था. 60 रुपए कमाए 806 रुपए पे यार, अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.5%. हाँ अप्रोक्सीमेटली 7.5% आएगा. इसको कैंसिल करेंगे तो मैंने देखा अगर ये 6 अपॉन 80 होता, परसेंटेज करता, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, ये 3/4 आता. 30/4 मतलब 7.5% के करीब इंटरेस्ट आता है. कितना आता है? 7.5%. 7.49 में अप्रोक्सीमेट कर लो 7.5%. तो 866.72 तो मुझे मिलेगा ही फोर्थ ईयर में, प्लस 7.5% ऑफ इट. मतलब 1% इज 8.6672, तो 7.5% मतलब, और आप ऐसे भी कर सकते हो 75% ये होता है, 0.75% एक और 100 लगा लो. क्या मेरी बात समझ में आई? सॉरी, एक 10 और लगा लो, 7.5% आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लो साहब, ये 3/4 होता है, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, and 4 5 जा 20, into 3 कर लो, 3 5 जा 15, 16 3 जा 48, 49 and 649. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सो दिस कम्स आउट टू बी, डिवाइड बाय 100 होगा तो 64.95 और जोड़ेगा. कितना और जोड़ेगा? 64.95. अभी तक कितना आया था सेकेंड ईयर का? 866.00 लगा लेते हैं, तो 65 जोड़ लो इसको थोड़ा. 6 + 5 is 11. कौन सा वाला होगा अप्रोक्सीमेट आंसर? इज इट फाइन? हमने बड़ा बड़ा के वैल्यू लिया, ठीक है ना? इज इट फाइन? क्लियर? ठीक है.
तो मेरा आंसर आएगा 929.48 एग्जैक्ट निकालोगे तो यही आएगा 7.5% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू व्हिच यू कैन कैलकुलेट इट। आपका काम ये होना चाहिए था कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एवरीवन नोज 10% इज दिस, 1% इज दिस, 7 8 56, 4 और बचा तो 7.5% ही इंटरेस्ट लगेगा। मैं तो कह रहा हूं ये डिवीजन भी क्यों करना, आप सोचो थोड़ा। 806.25 का 60 कितना परसेंट होता है? मैंने कहा इसका 1% होता है 8, 8 7 जा कितना होता है? टेबल पड़ा होगा, 8 7 जा 56 प्लस 4 बचा है, मतलब 7.5% अप्रॉक्सिमेट। तो 7.5% ऑफ ये वैल्यू निकालना है। तो 866.75 का 866 का 67 लगा लो, इसका 3/4 निकाल दो, 3/40, 3/4 होता है 75%, 3/40 होता है 7.5%। कैंसिल कर लो, 42 जा 80, 43 जा 60 एंड 41 जा 40 इंटू 3, 69.51 जोड़ लो, आंसर आ जाए। Is that fine, Claire? This is how you can do it. सर एक प्रॉब्लम था हाँ जी बोलिए। सर, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हर ईयर पर्टिकुलरली सेम ही रहता है क्या? हाँ, इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक डिफरेंस आता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो पता है मुझे, बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो होता है, जो 7.5 है, वो सक्सेसिवली सेम ही रहेगा हर ईयर? बिल्कुल बिल्कुल सर, हर ईयर सेम रहेगा until it is not mentioned। अगर कहीं लिखा हो पहले 2 साल में 7% है, उसके बाद दिस इज 9%, तो if it is mentioned then only it changes, otherwise it is remaining to be same। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सर चलो। हाँ जी, आंसर फर्स्ट वाला आ रहा है 931.72। 931.72 ऐड करने के बाद यही आ रहा है क्या? एक मिनट रखना, मतलब मेरा जो ये 7.5% है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज। एक मिनट रुक जाइए साहब। यस सर। Class निकालो तो first आपने तो सर वो डिटेल किया सर approximation वाला, हाँ, लेकिन अगर exact calculate एक बार चेक कर लूंगा इसको। आई थिंक एग्जैक्ट आ रहा है 7.5% से। नहीं ठीक। exact 7.504 कुछ आ रहा है सर, तो 7.5 कंसीडर करके हाँ, अप्रोक्सीमेटली 65.004 रुपीज आ रहा था, एंड दैट इज 69 आ रहा है यार, एक बार चेक कर लेना इसको फिर भी। 60 यस 69.50 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना 7.5%। तो मेरे हिसाब से 929 आना चाहिए, अगर होगा चेंज तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट इट इज 7.5% दैट यू विल चार्ज मोर ऑन दिस मनी। ठीक है, ठीक है जी।